Welcome back to continue part of your chapter 3. I hope after reading you understood this lesson very well. Now we will revise all the points on the board. So see on the board. First you read in your book soil formation. What is the meaning of soil formation? It means in the beginning of the earth there was no life on the earth. Only rocks covered with the whole earth. After many years, it means it took many years to become a soil. Rocks converted into soil, it took many years. Thousands and millions of years ago, the sun heated the rocks, wind blew over them and rain cooled them. After some time they converted into small pieces. Then further they converted into smaller pieces and then become soil. Now next point is soil contents. You read about the soil contents. How many things? Humus. Did you remember? Yes, humus. Then clay, sand and stones. These 4 things contain soil. Now next, types of soil. You read about the 3 types of soil. Which one? First was clayey soil, then sandy soil, then loam soil. Now we will talk about one by one all the soil. First is sandy soil. Sandy soil mostly found in seashore or in desert. Sandy soil particles have lot of air. Now we will talk about the clayey soil. Clayey soil is good for the making pots and toys. Mostly it is used by the potters only and it is useful for rice crops also. Then we read about the loam soil. Loam soil is the mixture of sandy soil and clayey soil. Clayey soil is the sticky soil. Then it can hold lots of water and loam soil can hold air, water and one more thing, humus also. Soil and crops. What you read in this chapter? Soil and crops. It means different types of crops need different types of soil. Some need sandy soil, some need clayey soil and some need loam soil. Different types of crops need different types of soil. And when farmer add the manure, then crops grow better. So I hope up to here you understood this lesson very well. Now I am giving one Hindi video also to make you understand this lesson completely. So see the video. मिट्टी कैसे बनती है? हमारे लिए इसका क्या महत्व है? हम सब पृथ्वी नामक ग्रह में रहते हैं। पृथ्वी यानी अर्थ, ग्रह यानी प्लैनेट। पृथ्वी पर जीवन यानी लाइफ कैसे संभव है आप जानते हो? पृथ्वी में हवा, एयर, पानी, सूर्य की रोशनी, सनलाइट और मिट्टी होने के कारण जीवन संभव है। ये प्राणियों के लिए आवश्यक तत्व एलिमेंट्स हैं। तो मिट्टी क्यों आवश्यक यानी नेसेसरी है? सभी पौधे, प्लांट्स मिट्टी में बढ़ते हैं और पौधे जीवन का जरूरी तत्व है। पौधे हमारे खाने का अहम स्रोत है यानी फूड सोर्स। कीड़े मकोड़े यानी इंसेक्ट्स, खरगोश, सांप के बिल, बरोज और छेदों, होल्स में रहने वाले छोटे जानवर सभी मिट्टी में घर बनाते हैं। कुछ कच्चे घर मिट्टी से ही बनते हैं। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स हमें मिट्टी में मिलते हैं। लेकिन मिट्टी वास्तव में क्या है? यह कैसे बनती है? आपके मन में जरूर यह सवाल पैदा हुआ होगा
कि इतनी सारी मिट्टी कौन बनाता है। चलो हम इसे विस्तार से देखेंगे। लाखों साल पहले पृथ्वी चट्टानों से बनी थी। तब मिट्टी न होने के कारण पेड़ पौधे नहीं थे। बारिश, ठंड, गर्मी और हवा से चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। भारी चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की इस प्रक्रिया को वेदरिंग कहते हैं। मौसम यानी वेदर के प्रभाव से भारी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को वेदरिंग कहते हैं। चट्टानों के टूटे हुए टुकड़ों पर धीरे धीरे छोटे पौधे और हरी मॉस उगने लगती है। जब ये पौधे मर जाते हैं तब इनके अवशेष रिमेन्स पत्थरों स्टोन्स से मिलकर मिट्टी देते हैं। वेदरिंग जारी रहती है। बड़े वृक्ष उगना शुरू होते हैं। धीरे धीरे जानवर का जीवन यानी एनिमल लाइफ शुरू हुआ। क्या आपको पता है पृथ्वी पर मिट्टी बनने में लाखों साल लग गए। धरती अर्थ की सबसे ऊपर की परत टॉप लेयर मिट्टी होती है। मिट्टी एक जैसी नहीं होती। इसमें परत के ऊपर परत यानी लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कई लेयर परतें होती है। मिट्टी की ऊपर की परत को टॉप सॉइल कहते हैं। यह उपजाऊ होती है तभी इस पर पौधे उगते हैं। इसके नीचे सब सॉइल होती है। ये छोटे पत्थरों के होने से कड़क होती है। इसके नीचे टूटे पत्थर के टुकड़े वेदर्ड रॉक फ्रैगमेंट्स होने से पेड़ पौधे या जानवर नहीं होते। सबसे नीचे की परत यानी बॉटम मोस्ट लेयर बेड रॉक लाखों साल पहले बनी हुई है। यह लाखों साल पहले धरती के बनते समय से है। इस परत में सिर्फ बड़े बड़े पत्थर है। संक्षिप्त में इन शॉर्ट मिट्टी टूटी हुई चट्टानों, खनिज मिनरल्स, प्राणियों और सड़े हुए डिकेइंग जीव पदार्थों यानी ऑर्गेनिक मैटर का मिश्रण है। चलो मैं आपको एक चुटकुला बताती हूँ। एक माली अपने धन को क्यों गाड़ देगा? सोचो सोचो। कोई आइडिया? उसे मिट्टी को धनी रिच बनाना है। टॉप सॉइल में होने वाले सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस काला, मुलायम और पौष्टिक रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। मिट्टी को ऊपर की इस टॉप सॉइल को बनने में लाखों साल लगे हैं। पेड़ पौधे यहाँ उगते हैं, इसीलिए यह बहुत उपयोग की चीज है यानी यूजफुल। चलिए हम बगीचे में से थोड़ी सी उपजाऊ मिट्टी लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या होता है। सबसे पहले हम थोड़ी सी मिट्टी को एक बर्तन में लेंगे और इस बर्तन को एक ढक्कन से ढक देंगे। फिर हम उस बर्तन को थोड़ा सा गर्म करेंगे। यदि सूर्य की रोशनी तेज हो तो हम उस बर्तन को कुछ घंटों के लिए धूप में भी खुला रख सकते हैं।
ढक्कन हटा के देखेंगे। देखिए, ढक्कन पर तो पानी की कुछ बूंदें दिखाई दे रही है। ये कहाँ से आया? हमने तो इसमें पानी नहीं डाला था, हमने इसमें सिर्फ मिट्टी ही भरी थी। तो इससे हमें यह पता चलता है कि मिट्टी में पानी भी मौजूद होता है, और जब हम इसे गर्म करते हैं यह पानी वाष्प में बदल जाता है, और बाद में जब यह भाप या वाष्प ढक्कन से टकराती है तो यह ठंडी होकर पानी की बूंद में बदल जाती है। तो अब आपको पता चला बच्चों कि मिट्टी में पानी होता है, जिससे कि पौधे अपनी जड़ों को अवशोषित करते हैं। अब हम थोड़ी सी मिट्टी को एक बर्तन में डालेंगे और इसके ऊपर पानी डालेंगे। देखिए, इसने कुछ पानी के बुलबुलें उठ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सही, इससे यह पता चलता है कि मिट्टी में हवा भी मौजूद होती है। जब हम इसमें पानी डालते हैं, मिट्टी के कणों के बीच जो जगह खाली होती है उसमें हवा मौजूद होती है, और ये ही हवा बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। तो मिट्टी में मौजूद हवा पौधों की जड़ों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है। कई जीव जैसे कि केंचुए आदि भी मिट्टी में रहते हैं। वे सांस लेने के लिए मिट्टी में मौजूद इसी हवा का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग प्रकार की मिट्टी में पानी और हवा को सोखने की क्षमता अलग अलग तरह से होती है। यदि हम सिर्फ अपने आसपास ही देखेंगे तो भी हम यह कह सकते हैं कि मिट्टी कई प्रकार की होती है। लेकिन बच्चों, यह बताओ कि ये अलग अलग कैसी होती है? यदि हमें यह जानना है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टी में क्या अंतर होता है, तो हमें यह जानना होगा कि मिट्टी में क्या क्या मौजूद होता है। चलिए हम बगीचे में से मुट्ठी भर मिट्टी ले आते हैं। अब हम एक कांच का गिलास लेते हैं और इसके 3/4 भाग में पानी भर देते हैं। अब हम पानी में मिट्टी को मिलाते हैं और पानी को एक लकड़ी से हिलाते हैं। इसके बाद इसे कुछ देर के लिए बिना हिलाए रख देते हैं। देखिए बच्चों, मिट्टी में 3 अलग अलग परतें बन गई हैं। यह परत मिट्टी में मौजूद विभिन्न कणों से बनती है। सबसे नीचे वाली परत बजरी से बनती है, यानी कि कंकड़ और पत्थर से। इसके ऊपर वाली जो परत होती है वह रेत की परत होती है। रेत के ऊपर एक और परत होती है जिसमें मौजूद कण रेत के कणों से भी बारीक होते हैं। इसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। तो चिकनी मिट्टी का कण सबसे छोटा होता है। देखिए तो जरा गौर से, पानी के ऊपर कुछ तैर रहा है। हाँ बच्चों, इसमें आपको सूखी पत्तियां मिलेंगी और सड़े हुए कार्बन पदार्थ भी मिल सकते हैं। इसी को खाद कहते हैं। खाद पौधों को पोषण प्रदान करती है और मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तो अब हम जानते हैं कि सामान्यतः मिट्टी छोटे कंकड़ों और पत्थरों से बनती है। इसमें रेत, चिकनी मिट्टी और अन्य कण भी मौजूद होते हैं। मिट्टी में हवा और पानी भी मौजूद होता है। सूखी पत्तियां, सड़े हुए कार्बन पदार्थ भी मौजूद होते हैं, जो कि आगे जाके खाद बन जाते। यदि किसी मिट्टी की संरचना इस प्रकार की हो कि उसमें उचित मात्रा में हवा और पानी समा सके और पौधों को पोषण प्रदान करने के लिए सही मात्रा में खाद मौजूद हो, तो यह मिट्टी उपजाऊ होती है। और बच्चों, आपको पता है मिट्टी में केंचुए रहते हैं जो मिट्टी को भुरभुरी कर देते हैं। इससे ज्यादा मात्रा में हवा और पानी मिट्टी में समा सकते हैं। अब यदि केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात तो नहीं है।